آج کا جو موجودہ فتنہ ہے، ایک تو وہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، اس کا بھی تعاقب کیا جا رہا ہے۔ ایک اور فتنہ گوہر شاہی کے نام سے چل رہا ہے۔ یہ خطرناک فتنہ ہے، جس فتنے کا شکار ہو کر لوگ غیر محسوس طریقے پر ایمان سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ مختصر کتابچے کی شکل میں ان دونوں فتنوں کا تعارف کراتے ہوئے دو کتابچے اس وقت شائع کیے گئے ہیں، ان کا اجرا عمل میں آ رہا ہے۔ فتنہ گوہر شاہی دور حاضر کا بدترین فتنہ، اس کتاب کے ذریعے اس فتنے کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور یہ مرکز کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو تحریری شکل میں کتابچے کی شکل میں یہ آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ پہنچے گا۔ اسی طریق پر یہ ریاض احمد گوہر شاہی تو دنیا سے جا چکا، لیکن اس کا نائب یونس گوہر شاہی یہ آج بھی بیرون ملک سرزمین پر بیٹھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہا ہے۔ جی، اس موضوع پر یونس گوہر شاہی دور حاضر کا بدترین کافر، اس عنوان پر بھی ایک کتاب شائع کیا گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ تحریر میں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کتابچوں کو ملت کے لیے نافع بنائے، ایمان کی حفاظت کا بہترین اس کو ذریعہ بنائے۔ مرکز تحفظ اسلام ہند کا 2 روزہ سالانہ مشاورتی اجلاس سن 2024 فروری 17 اور 18 بروز سنیچر اور اتوار جامعہ تعلیم القرآن بنگلور میں سرپرستان مرکز حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی، حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی اور حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے مرکز تحفظ اسلام ہند کے تقریباً اراکین نے شرکت فرمائی۔ اس سالانہ مشاورتی اجلاس میں گزشتہ سال کے کئی کاموں کا جائزہ لیا گیا، مالیات سمیت مختلف شعبہ جات کی رپورٹ پیش کی گئی، آئندہ سال کا لائحہ عمل تیار کیا گیا، نئے عہدیداران اور اراکین کا انتخاب عمل میں آیا، اور مختلف شعبہ جات بالخصوص شعبہ تحفظ ختم نبوت اور شعبہ ہیٹ کرائم قیام عمل میں آیا، اور ملک کے موجودہ حالات میں مرکز کے ذمہ داریوں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا اور اہم تجاویز منظور ہوئی۔ سرپرست مرکز حضرت مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے آئندہ ٹرم کے لیے محمد فرقان کو ڈائریکٹر، حافظ محمد حیات خان کو آرگنائزر اور قاری عبد الرحمن القبیر قاسمی کو خازن منتخب فرمایا، جس کی تمام اراکین نے تائید فرمائی۔ اس موقع پر حضرت مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی کو مرکز تحفظ اسلام ہند کی جانب سے سپاس نامہ بھی پیش کیا گیا، اور اراکین مرکز کو مفتی صاحب کے ہاتھوں اسناد کی تقسیم بھی کی گئی۔ اس موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سرپرست مرکز حضرت مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ مرکز تحفظ اسلام ہند گزشتہ کئی سالوں سے دینی مذہبی خدمات اور ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی دینی اور مذہبی رہبری کا فریضہ انجام دیتے آیا ہے، لہٰذا اس ادارے کا ہر ایک مسلمان ساتھ دے۔ سالانہ مشاورتی اجلاس کا پریس کانفرنس کی تفصیلی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز تحفظ اسلام ہند گزشتہ کئی سالوں سے دینی مذہبی خدمات اور ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی دینی مذہبی رہبری کا فریضہ انجام دیتے چلا آ رہا ہے۔ مختلف مواقع پر تقاضوں کی بنیاد پر اہم موضوعات پر ملک کے اکابرین کو اپنے پلیٹ فارم پر حساس موضوعات پر دعوت دینا اور ان کے ذریعے ملک کے مسلمانوں کو پیغامات پہنچانا، یہ اس کے اہم ترین خدمات میں شامل ہے۔ بہت سارے مواقع پر
मुसलमान मुल्क का मुसलमान बेचैन रहता है और अपने अकाबिरीन की हिदायत का मुंतजिर रहता है। ऐसे मौके पर अखबारात में या मीडिया में या तो उन मसाइल को उजागर नहीं किया जाता, अकाबिरीन की हिदायत को जगह नहीं दी जाती। तो ऐसे तमाम मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम हिंद ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए उन तमाम मौके पर अकाबिरीन की हिदायत का हासिल करना और उसे मुल्क के मुसलमानों तक पहुंचाना, ये बहुत आसान किया और बहुत अच्छे तरीके पर इस खिदमत को उन्होंने निभाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ये मुल्क के मुख्तलिफ अज़ला में हिस्सों में फैली हुई है और बतदरीज ये फैलती जा रही है और मुख्तलिफ अग़राज़ व मक़ासिद के तहत ये काम करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुल्क के अकाबिरीन की सरपरस्ती में काम करती है। बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके पर इन्होंने अपने सरपरस्त बना रखे हैं और हर मौके पर मशवरा करके और उनके दिए गए राय की रोशनी में अपने कामों को तरतीब देती है और अंजाम देती है। ये मौका है कि ये अपने 2 साला कारकर्दगी का जायजा लेने और एहतिसाब करने मुशावरती इजलास मुनक़िद किया है, जिसमें बेंगलौर के अलावा मुख्तलिफ अज़ला की नुमाइंदगी है। और ये इजलास जामिया तालीमुल कुरान राजेहल्ली बल्लरघट्टा रोड के करीब जो वाक़ है वहां ये 2 रोज़ा इजलास मुनक़िद है। इसमें मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले साथी शामिल हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुज़िश्ता 2 सालों में किए गए कामों का जायजा लिया जा रहा है और आइंदा के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। और पूरी मुस्तैदी के साथ, बेदार मग़ज़ी के साथ अपनी जिम्मेदारी समझकर ये तमाम साथी मरकज के मुत्तहिद और एकजुट होकर के आइंदा मज़ीद हौसलों के साथ और अज़ाइम के साथ इस 2 रोज़ा मीटिंग में तयशुदा उमूर पर काम करने का जज्बा लेकर इंशाअल्लाह अपने इलाकों में जाएंगे और काम इंशाअल्लाह करेंगे। आप हजरात ये आप देख रहे होंगे, सब नौजवान माशाअल्लाह इस कम उम्री में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक प्लेटफॉर्म दिया, अकाबिरीन की सरपरस्ती में फराहम की और काम करने की लगन दिया। और इस प्लेटफॉर्म पर अकाबिरीन का एतमाद भी है और ये तमाम साथी भी उस एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मौके पर फिक्रमंद रहते हैं कि अपने अकाबिरीन के एतमाद को किसी कौल व अमल से ठेस न पहुंचे, उसकी फिक्र में रहते हैं और मशवरे के पाबंद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके कामों में बरकत दी, ज़बान में असर दिया, दावत में खुलूस दिया। अकाबिरीन आपकी दावत पर, मरकज की दावत पर सोशल मीडिया पर हाजिर होते हैं, अपने पैगामात पहुंचाते हैं। आप हजरात भी मरकज के पैगामात को तवज्जो दें, यहां से निकलने वाली हर बात के बारे में ये समझें कि ये बात मुल्क के अकाबिरीन की जानिब से दी जा रही है। चूंकि ये मशवरे के ताबे हैं तो कोई ऐसी बात जो मौके के लिहाज से गलत कही जा सकती हो, इंशाअल्लाह यहां से ऐसी कोई बात जारी नहीं होगी। और
मुल्क के मुसलमानों को और मुल्क के हक में जो बेहतर होगा वही आप हजरात की खिदमत में इस प्लेटफॉर्म के जरिए, मरकज के जरिए पहुंचाने की कोशिश होगी। लिहाजा आप हजरात भरपूर इस प्लेटफॉर्म का साथ दें, ताउन करें, इसका अपना एतमाद इसको अता करें और इसको अपना मुअतमद समझें, तो इंशाअल्लाह ये तमाम नौजवान साथी जो जज्बे से भरपूर हैं और लिल्लाह, अल्लाह को राजी करने के लिए अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर मरकज के कामों को अंजाम देते हैं, तरजीह देते हैं, मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं मरकज के तमाम साथियों को, दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम नौजवान हमारे साथियों के हौसलों को मजीद बुलंद फरमाए, इन सब को नजर बस से महफूज रखे, इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर तारीखी खिदमात अंजाम देने की इन सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस मौके पर मुल्क के मुसलमानों के लिए इंतहाई खुशी की बात यह है कि मरकज की तरफ से आज का जो मौजूदा फितना है, एक तो वो शकील बिन हनीफ का फितना है, उसका भी ताक़ुब किया जा रहा है, एक और फितना गौहर शाही के नाम से चल रहा है। ये खतरनाक फितना है जिस फितने का शिकार होकर लोग गैर महसूस तरीके पर ईमान से निकलते चले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर किताबचे की शक्ल में इन दोनों फितनों का तारुफ कराते हुए दो किताबचे इस वक्त शाये किए गए हैं, उनका इजरा अमल में आ रहा है। फितने गौहर शाही दौरे हाजिर का बदतरीन फितना, इस किताब के जरिए इस फितने को समझने में मदद मिलेगी और ये मरकज की काविशों का नतीजा है जो तहरीरी शक्ल में, किताबचे की शक्ल में ये आप हजरात की खिदमत में इंशाअल्लाह पहुंचेगा। इसी तरीक पर ये रियाज अहमद गौहर शाही तो दुनिया से जा चुका, लेकिन उसका नायब यूनुस गौहर शाही ये आज भी बैरून मुल्क सरजमीन पर बैठकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। जी, उस मौजू पर यूनुस गौहर शाही दौरे हाजिर का बदतरीन काफिर, इस उन्वान पर भी एक किताब शाये किया गया है। तो माशाअल्लाह ये तहरीर में भी आप हजरात के सामने पेश किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों किताबचों को मिल्लत के लिए नाफे बनाए, ईमान की हिफाजत का बेहतरीन इसको जरिया बनाए। ये आखिरी किताब हज़रत इमाम का है। जी ठीक है। बैतुल मक़दिस क़िबले अव्वल मुसलमानों का और आजकल बहुत ही ज्यादा हालात का शिकार है। गज़ा, फलस्तीन, अर्ज़ मुक़द्दस आज सैहूनी मज़ालिम का शिकार है। दुनिया बेहिस हो चुकी है, दुनिया के इंसानों का ज़मीर मर चुका है। वो जो जबान से कोई बात किसी के खिलाफ निकल जाती है तो जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हो या इंसानियत के नाम पर कायम तंजीमें हो, वो सारी तंजीमें बेहिस मुर्दा हो चुकी है। ऐसे जैसे फालिज मारने से उज़्व बेकार बेहिस हो जाता है। सारी दुनिया देख रही है खुला हुआ जुल्म, निहत्ते कमजोर ज़ईफ आबादी पर, खवातीन पर, बच्चों पर, स्कूलों पर, हॉस्पिटलों पर, इलाज कराने वाले मरीजों पर अंधाधुंध फायरिंग भी हो रही है और उन पर बमों की बारिश भी बरसाई जा रही है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, इज्तिमाई कब्रों में तदफीन अमल में आ रही है।
अजीब व गरीब अल्लाह ने उन लोगों को ईमान दिया है। इतना सब होने के बावजूद अपनी ईमान पर कायम और डटे हुए हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, ये इस्तिकामत पर जो है गुज़िश्ता 2-2.5 महीनों से जमे हुए हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका का मुज़ाहरा होना चाहिए, इनामात की बारिश होनी चाहिए, जुल्म को दुनिया से खत्म होना चाहिए, जालिम के हक में हिदायत या जुल्म को खत्म करने के ज़िम्न में जालिम का भी हिसाब व किताब हो जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन में गज़ा में बसने वालों की मदद और नुसरत फरमाए। यहाँ इस मौके पर हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहिब सानी लुधियानवी रहिमहुल्लाह, जो शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे, शाही इमाम के लक़ब से मुलक़्क़ब थे, आपने अपनी हयात में अपने आखिरी खुतबे के तौर पर बैतुल मक़दिस और हमारी जिम्मेदारियां के उन्वान पर आपने जो खिताब फरमाया था, उसको भी एक किताबचे की शक्ल देकर तहरीर में उसको भी लाया गया है। ये 3 किताबों का इजरा इस मौके पर मरकज की जानिब से हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला मरकज की, उसके तमाम साथियों की इन खिदमात को कबूल फरमाए और इन किताबचों को मकबूल आम व ताम फरमाए।